Hello everyone and welcome to my YouTube channel सोनिया मेहता केमिस्ट्री क्लासेस. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सब ठीक हैं. आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स. What are indicators? Indicators are those chemical compounds which changes its color either in acidic medium or in basic medium. That is known as indicator. Indicator का क्या मतलब है? जो indicate करे. And in terms of chemistry when we talk about, so indicators are such substances, such compounds which changes its color either in acidic medium or basic medium, which tells us whether the substance, whether the solution is acidic or basic in nature. So today I would like to discuss very common, very useful such indicators which are there in laboratory and it is there in the syllabus of 8th to 10th class. The first one is litmus paper or litmus solution. Blue litmus paper or blue litmus solution, red litmus paper or red litmus solution. Third one is phenolphthalein and fourth one is methyl orange. So acid turns blue litmus to red. Bases turn red litmus to blue. It can be litmus paper, it can be litmus solution. So with acid, if the substance is acidic in nature, for example, if you will dip blue litmus paper to acidic substance or in acid, then if the color changes to red, then it will confirm that the given sample is acidic in nature. And on the other hand, bases turns red litmus paper or red litmus solution to blue. So there will be no effect of blue litmus paper with bases. With acid, the color changes from blue to red. In the same manner, there will be no effect of acid with red litmus paper. Red litmus paper changes its color from red to blue with bases only. Coming to the third very important indicator, that is phenolphthalein. No change with acid, and phenolphthalein changes its color from colorless to pink, dark purple in case of bases. Very good result you will get. So that is in case of phenolphthalein. Methyl orange, as the name is there, methyl orange, so its color is orange. Methyl orange changes its color from orange to pink with acid and from orange to yellow with bases. With the help of this indicator, we can find out whether the given substance or the solution is acidic or basic in nature. Now coming to a very important and very interesting activity which all of you can perform at home also. Turmeric, जिसको हम बोलते हैं हल्दी, that is a natural indicator. Not only turmeric, there are lot many other substances which we obtain from plant or organic things, that is also known as indicator. Like we can obtain indicator from your purple cabbage, उससे भी इंडिकेटर बना सकते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बार टर्मरिक की. सो हल्दी इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि कई बार हमारे कपड़ों में अगर कहीं हल्दी लग जाती है एंड वेन एवर वी वॉश इट लाइक बाय यूजिंग सोप, जिसमें भी बेस है हमारा ये डिटर्जेंट, देन जो एरिया होता है हल्दी वाला, द कलर चेंजेस टू पिंक. वो एरिया एक बार पहले पिंक हो जाता है. तो हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है. इसकी एक शॉर्ट सी एक्टिविटी आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 50 to 60 ml और 50 to 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर. ग्लास टम्बलर ले सकते हैं घर में, तो बीकर तो क्या लेंगे आप, ग्लास टम्बलर ले सकते हैं. एंड देन यू ऐड 1 to 2 टीस्पून ऑफ हल्दी टर्मरिक पाउडर इनटू इट. स्टेर इट वेल. और उसको फिर आपने क्या करना है, दो अलग अलग बीकर्स में लेना है. इन वन बीकर यू ऐड सोप सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं आप, डिटर्जेंट भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग विच इज़ बेसिक इन नेचर. एंड यू विल फाइंड उसका कलर चेंज हो जाएगा आपका पिंक में, और पिंक से थोड़ा और डार्क भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है. सो इट विल टेल दैट जो हमने उसमें ऐड किया है दैट इज योर वॉट, दैट इज बेसिक. तो टर्मरिक जो है दैट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू पिंक और येलो टू रेड विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस. बट ऑन द अदर हैंड अगर इसमें हम डाल देते हैं एसिड, एसिड में आप घर पे जैसे आप लेमन जूस डाल सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, तो जो उसका कलर होगा उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो येलो से थोड़ा सा डिफर करेगा. सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो. सो हल्दी इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. सो मिथाइल ऑरेंज, फिनॉप्थलीन, ब्लू लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन, और रेड लिटमस पेपर और रेड लिटमस सोल्यूशन, दीज आर द कॉमनली यूज्ड indicators. Again, I would like to summarize this point. Acid turns blue litmus to red, color of blue litmus paper to red.
बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इसको याद करने के लिए कई बार हम दो वर्ड भी न्यूमोनिक इसमें होता है आपका बार, BAR बार। मिडिल वन इज एसिड, सो एसिड टर्न्स द फर्स्ट लेटर इज B, blue litmus to the third letter is R, blue litmus to red, and RBB, middle word is B, bases turn red litmus to blue litmus paper, blue litmus blue color, red litmus color to blue litmus color. On the other hand, today I would also like to discuss about the concept of universal indicator. अब तक जो हमने बात की है आपके ये लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, फिनोक्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर हैं। ये सिर्फ ये बताएंगे वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक इन और बेसिक इन नेचर बताएंगे, लेकिन उसका स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? पीएच पेपर और पीएच सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकॉज इट नॉट ओनली टेल्स द नेचर, इट ऑल्सो टेल्स द स्ट्रेंथ। वो ये भी बताएगा कि एसिडिक है या बेसिक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, क्या वो वीक एसिडिक है, क्या वो न्यूट्रल है। जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट करें, बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है। सो देयरफॉर पीएच स्केल और पीएच पेपर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर विच टेल्स नेचर एज वेल एज स्ट्रेंथ। इसके अंदर जो रीडिंग होती है दैट इज फ्रॉम 1 to 14। जो 7 है दैट इज फॉर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जैसे वाटर है, वाटर जो हमारा आपका पोटेबल वाटर होता है, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 के अराउंड होती है। नीदर एसिडिक, ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होता है। कमिंग टू द पॉइंट, लेस देन 7 इज एसिडिक एंड मोर देन 7 इज बेसिक। सो विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर और पीएच स्केल वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एज वेल एज नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम पोटेबल वाटर की बात करें, नाउ अ डेज वी हैव लॉट मैनी फिल्टर्स, RO, कैंट, प्यूरीफायर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे हम पानी का पीएच भी चेक करते हैं कि क्या पानी ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है या ज़्यादा अल्कलाइन तो नहीं है, उसका पीएच लेवल ठीक होना चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर द डाइजेशन। सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर। आई होप यू लाइक द वीडियो। एक जो एक्टिविटी मैंने आपको बोली वो आप परफॉर्म कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या रिजल्ट रहा टर्मरिक वाली एक्टिविटी का, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम क्लासेस 6 to 8. So stay happy, stay healthy, like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.